हर एक चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। इस चैप्टर का ये क्या होता है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। बड़े सारे नाम है इसके, अभी हम सुनेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, एक एक करके आराम से पहले अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट इज अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, PPF? Due to scarcity of resources, we cannot satisfy all our wants. Even if an economy uses all its resources in the best possible manner, its capabilities are restricted due to scarcity of resources. आप अपने resources best possible way में use भी कर लें तो क्या अपनी सारी want satisfy कर पाएंगे? No, sir. Not possible. As we cannot have everything that we want, we are forced to make economic decisions. Problem of choice. These decisions take the form of choices among the alternative goods and services that will best satisfy our wants. Thus, the society must decide what to produce out of almost infinite range of possibilities. As the choice is to be made between infinite possibilities, the economist assumed a very basic economy with only two goods. कह रहे हम आपकी हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में, बट हमारी कुछ assumptions हैं, जिसमें से सबसे पहली assumption है that there are only two goods. उन two goods में आपने choice लेनी है कि what to produce, how to produce, for whom to produce, whatever. Only two goods. Economists have traditionally represented this range of choices by what they call a production possibility schedule. Production possibility schedule table को बोलेंगे, जो उसकी graphical presentation होगी उसको बोलेंगे production possibility frontier. When the schedule is graphically represented, it is called a production possibility frontier और a production possibility curve. तो अगर definition आएगी तो आप ये लिखेंगे। क्वेश्चन आया, what is a production possibility frontier? It refers to the graphical, ये कीवर्ड है, graphical representation of the possible combinations of two goods that can be produced with the given resources and technology. With the given resources and technology. इसमें एक एडिशनल पॉइंट अच्छा इसकी वैल्यू एडिशन होगी, when the resources are fully utilized. So graphical representation of possible combinations of two goods that can be produced with the given resources and technology when the resources are optimally fully utilized. Alternatively, PPF is the locus of various possible combinations of two goods that can be produced with the given resources and technology. So what is the PPF? It refers to the graphical representation of possible combinations of two goods that can be produced with the given resources and the technology. ध्यान से देखना कैसा होता है ये PPF, ध्यान से देखना। X एक्सिस, Y एक्सिस, ओरिजिन। X एक्सिस पे मैं क्या शो कर रहा हूँ? गुड X। Y एक्सिस पे क्या शो कर रहा हूँ? गुड Y। कुछ भी हो सकता है। गुड Y लेट अस अज्यूम हमने ले लिया गन्स, गुड X ले लिया बटर। आपको बस जनरल आइडिया दे रहा हूं कि इसकी शेप कैसी होती है, ध्यान से देखना। ये होती है इसकी शेप। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, PPF।
क्या शो कर रहा है ये, ध्यान से देखना क्या शो कर रहा है ये। पॉइंट्स में अभी शेड्यूल के हिसाब से बाद में चेंज कर दूंगा, अभी बस मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि शेप कैसी होती है और वो इंडिकेट क्या कर रही है। ध्यान से देखना क्या इंडिकेट कर रही है। तो अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या शो कर रहा हूं मैं, इस सारे मैं क्या बना रहा हूँ, सिर्फ गन्स या बटर भी बना रहा हूँ। अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ, पॉइंट ए पे हूँ, तो क्या हो रहा है, सिर्फ गन्स बन रही हैं या बटर भी बन रहा है? सर उस पॉइंट पे सिर्फ गन्स बन रही हैं। ओनली गन्स? यस सर। एनीवन एल्स? सब यही कहते हैं कि पॉइंट ए पे सिर्फ और सिर्फ गन्स बन रही हैं। यस सर। यस सर। करेक्ट, सारे के सारे रिसोर्सेज गन्स पे यूज हो रहे हैं। फिर अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाता हूं तो क्या होता है, आई एम इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ बटर, यस सर। but to increase the production of butter I have to reduce the production of guns. Yes, sir. फिर मैं पॉइंट बी से पॉइंट सी पे गया, टू प्रोड्यूस मोर ऑफ बटर, तो गन्स की प्रोडक्शन और कम करनी पड़ेगी मुझे, यस और नो? यस सर। यस सर। फिर मैं पॉइंट सी से पॉइंट डी पे गया तो मुझे प्रोडक्शन और कम करनी पड़ेगी, Yes, sir. यस सर। तो अभी हमने पॉइंट क्या सीखा, टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वन गुड वी हैव टू रिड्यूस द अदर गुड। ऐसा क्यों? Scarce resources. स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि हमने बोला था कि अगर आप पीपीसी के ऊपर हो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे वो पॉइंट्स आते हैं which produce different combinations of two goods that an economy can produce with the given resources and technology when the resources are fully utilized. तो क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों की प्रोडक्शन बढ़ा दी जाए? No, sir. क्यों नहीं हो सकता? लिमिटेड रिसोर्सेज, बहुत कम है हमारे पास. क्योंकि आप अपने रिसोर्सेज पहले ही फुल्ली यूटिलाइज कर चुके हो, एग्जॉस्ट कर चुके हो रिसोर्सेज, आपके पास और रिसोर्सेज नहीं बचे, तो आप दोनों की प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। एक की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो दूसरे की कम करनी पड़ेगी। तो शेप ऑफ पीपीएफ ऐसी क्यों है, समझ आया? इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स शेप। क्यों कॉन्वेक्स शेप एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग? अभी छोटी सी बात अगर करें तो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वन गुड वी हैव टू रिड्यूस द अदर गुड। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा कब? यस सर। कन्वेक्सिटी अभी आएगा वो पॉइंट, एक टर्म सीखेंगे हम, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद में आऊंगा कन्वेक्सिटी पे। अभी मैंने आपको बस जनरल शेप बताई है, पीपीएफ कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और कॉन्वेक्स होता है। इसमें किसी को कोई डाउट? अब ध्यान से देखना, बिफोर वी स्टडी फर्दर हम पहले अजम्पशंस पढ़ते हैं कि अजम्पशंस क्या हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की। अजम्पशंस, इकोनॉमिक्स में कोई भी हम लॉ स्टडी करेंगे तो वो उन अजम्पशंस में ही ट्रू होल्ड करेगा। अगर आपने अजम्पशंस अप्लाई नहीं करी तो वो लॉ नहीं चलेगा। तो क्या है assumptions? Production possibility frontier. The concept is based on the following assumptions. Number one, the amount of resources in an economy is fixed, but these resources can be transferred from one use to the other. मतलब इस लाइन के बाहर नहीं जा सकते, इस लाइन पे आपके सारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हैं, आपके रिसोर्सेज बढ़ नहीं सकते। अगर आपके पास 10 एकर्स ऑफ लैंड है तो 10 एकर्स ऑफ लैंड ही है। अगर आपके पास 1000 एम्प्लॉइज है तो 1000 एम्प्लॉइज ही हैं, तो उनसे या तो गन्स बनवा लो या बटर बनवा लो। कह रहे 2000 एम्प्लॉइज रख लो, गन्स भी बनाओ बटर भी बनाओ, पॉसिबल है? No, sir. कह रहे अजम्पशन है कि रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। तो इफ द रिसोर्सेज आर फिक्स्ड तो आप रिसोर्सेज ग्रो नहीं कर सकते, बट आपस में इंटरचेंज कर सकते हो कि वही रिसोर्सेज जो गन्स बना रहे थे उनसे आप बटर बनवा सकते हो। तो रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर यूज। अगर आप अकाउंट्स पढ़ा रहे हो तो ज्यादा शौक है तो मैथ्स भी पढ़ा सकते हो, मना नहीं कर रहे हम। बट दिन में अगर आप प्रोडक्टिवली 8 घंटे पढ़ा सकते हो तो 8 घंटे ही पढ़ा सकते हो, 8 से ज्यादा नहीं पढ़ा सकते। आप
उसको एक्सपैंड नहीं कर सकते। जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो फिक्स्ड है। आपके पास अगर आपकी इनकम 1 लाख है तो 1 लाख ही है, 1000 है तो 1000 ही है। रिसोर्सेज अजम्पशन है कि फिक्स्ड है, उनको ग्रो नहीं कर सकते हम, बट इंटरचेंज उनके यूजर्स दे कैन बी यूज फॉर ऑल्टरनेटिव पर्पस। ये बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. With the help of given resources only two goods can be produced। तो हम जो पीपीएफ का कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हैं सिर्फ 2 गुड्स पे स्टडी कर रहे हैं। ये बात भी क्लियर है? Yes, sir. The resources are fully and efficiently utilized। कह रहे ठीक है रिसोर्सेज लिमिटेड है, बट जो रिसोर्सेज हैं आप उनको फुली यूटिलाइज कर रहे हो, कोई आइडल नहीं छोड़ रहे। ये बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, तो अभी sir. लॉजिक समझ आएगी मैंने डेफिनेशन में ये क्यों लिखवा दिया, क्योंकि पीपीएफ का कॉन्सेप्ट वहां अप्लाई होता है कि व्हेन द रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड, फुल्ली एंड एफिशिएंटली। कोई डाउट? No, sir. No, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट असम्पशन है। फोर्थ, ध्यान से देखना, मैंने बोला रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, ग्रो नहीं कर सकते, बट दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू द अदर। ये बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बट क्या जरूरी है कि जितनी एफिशिएंटली मैं गन्स बना पा रहा था उतनी एफिशिएंटली मैं बटर बना पाऊंगा? No, sir. क्या ये जरूरी है? नहीं, sir. Sir. क्या ये जरूरी है कि जितनी एफिशिएंटली मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा था या इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था उतनी एफिशिएंटली मैं मैथ्स पढ़ा पाऊंगा? No, sir. No, sir. क्या जरूरी है कि जितनी एफिशिएंटली आप जिस जॉब में बेस्ट हो वो कर रहे हो, कह रहे कोई बात नहीं ये भी कर लेंगे, जरूरी है कि उतनी एफिशिएंटली आप दूसरी चीज भी कर पाओगे? नहीं। No, sir. अगर आप फुटबॉल अच्छा खेलते हो तो क्या जरूरी है कि आप क्रिकेट भी अच्छा खेलोगे? No, sir. तो बट क्रिकेट खेल तो सकते, ऐसा तो नहीं ना क्रिकेट खेल नहीं सकते। खेल तो सकते हैं सर। ऐसा तो नहीं ना कि मैं मैथ्स पढ़ा नहीं सकता, अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा तो क्या हुआ, पढ़ा तो सकता हूँ, क्या पता और अच्छा पढ़ाऊं। बट रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट का मतलब होता है रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। कह रहा है ऐसा नहीं हो सकता कि जो रिसोर्सेज अच्छे से बटर चिकन बना रहे थे वो अच्छे से चावल राजमा भी बना पाएंगे। जो लैंड राइस अच्छे से उगा पा रही थी वो वीट भी अच्छे से उगा पाएगी? जरूरी नहीं है। जहाँ पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी डेवलप हो गई थी वहां फैक्ट्रीज भी बहुत अच्छे से काम करेंगे? जरूरी नहीं है। यस, दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर, बट द रिसोर्सेज आर नॉट equally efficient in production of all the products. So when the resources are transferred from one production to another, the productivity decreases। अब ध्यान से देखना, वैसे तो मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ मैथ्स, बट लेट अस अज्यूम कि मैं इकोनॉमिक्स ज्यादा अच्छा पढ़ाता था, मैं मैथ्स कम अच्छा पढ़ाता था, बट मैंने ईगो पे ले लिया, कह रहा नहीं तुमने कहा मैथ्स मुश्किल है, मैं पढ़ा के दिखाता हूं तुम्हें। मैंने मैथ्स पढ़ाने का डिसीजन ले लिया। नाउ पहले क्या सिचुएशन थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ लेट अस अज्यूम सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था। अब नाउ आई एम शिफ्टिंग माय रिसोर्सेज फ्रॉम टीचिंग प्योरली इकोनॉमिक्स टू अ पार्ट ऑफ माय टाइम विल गो इन टीचिंग मैथ्स। तो अगर मैं मैथ्स पढ़ाना चाहूँ तो मुझे कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा टाइम, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Theoretically, I am shifting my resources from more productive use to less productive use as far as my resources are concerned. Yes, sir. Sir. Okay. मैं कहा मजा नहीं आया, पहले 8 के 8 घंटे इकोनॉमिक्स, फिर 1 घंटा इकोनॉमिक्स और 1 घंटा मैथ्स और कुछ मतलब बाकी घंटे इकोनॉमिक्स। मैं कहा और मैथ्स पढ़ाना चाहूंगा मैं, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, तो मुझे और सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। Yes, sir. Again, I am shifting from more productive use to less productive use. Yes, sir. तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? कम होती जाएगी।
ये बात समझ आ रही है? क्यों कम होती जाएगी? मैथ्स पढ़ा पढ़ा के खुद नहीं सीख जाऊंगा थोड़ा सा? बट वो लेस प्रोडक्टिव है आपके लिए। अरे तो कभी तो सीख जाऊंगा ना, कभी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी मेरी मैथ्स की भी। बट जिसमें ऑलरेडी बढ़ी हुई थी फिर उसको कम करके आप मैथ्स की तरफ जाओगे तो सीख जाऊंगा ना मैथ्स उतने अच्छे से जितने अच्छे से इकोनॉमिक्स आती थी। सर पर इकोनॉमिक्स की प्रोडक्टिविटी भी तो कम हो गई है ना। तो मैथ्स की तो बढ़ रही है ना, टोटल प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी जाएगी। सीख नहीं सकता मैथ्स? इतनी मुश्किल है? सीख सकता हूँ कि नहीं सीख सकता? सर सीख सीख सकते सकते हो। हो। उन्होंने अजम्पशन ली कि नहीं सीख सकता, वरना तो मैं सीख जाता, वरना तो मैं मैथ्स ही पढ़ा रहा होता। बट उन्होंने अजम्पशन ले ली, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। आप रिसोर्सेज को एनहांस नहीं कर सकते, जो टेक्नोलॉजी है जैसी है वैसी ही रहेगी, सब कांस्टेंट है। रिसोर्सेज जिस चीज के लिए फेवरेबल थे उसी चीज के लिए फेवरेबल रहेंगे। आप उनको ट्रेन नहीं कर सकते, आप उनको इम्प्रूव नहीं कर सकते, आप उनको ग्रो नहीं कर सकते। They are fixed, they are constant, state of technology remains the same, आप उनको improve नहीं कर सकते, तभी तो नहीं सीख पाया। बात समझ आई? यस सर। Yes, sir. अब इसको ग्राफ पे दिखाते हैं। assumptions मैं जल्दी से एक बार दोबारा बताऊंगा। नंबर 1, the resources in an economy they are fixed, मतलब amount of resources is fixed, but resources can be transferred from one use to another। ये बात क्लियर है? Yes, sir. There are only two goods। Number 3, the resources are fully and efficiently utilized, जितने resources आप पूरे exhaust कर चुके हो। Number 4, resources are not equally efficient in production of all the goods। So when resources are transferred from production of one good to another, the productivity decreases। ये clear है? Yes, sir. सर अगर हम जैसे एक गुड को थोड़ा सैक्रिफाइस कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी दूसरे में डाल रहे हैं, तो सर मतलब सर जिसको सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसकी डिक्रीज होगी ना, बट दूसरे वाले की तो इंक्रीज हो ही रही है। नहीं, उसकी प्रोडक्शन देखो, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है एफिशिएंसी। आप प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को मिक्स कर रहे हो। एक होता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन होता है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। एक चीज होती है प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी होती है एफिशिएंसी, दो अलग चीज है। तो अगर मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं तो एक दो बच्चे आ रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स तो मैं 10 बच्चों को पढ़ा रहा था, तो 1 घंटा मैथ्स में एक बच्चे को पढ़ाता हूँ, 1 घंटा इकोनॉमिक्स में 10 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो प्रोडक्शन तो बढ़ी, 1 मोर स्टूडेंट, बट एफिशिएंसी बढ़ी या कम हो गई? सर कम हो गई। जहाँ मैं एक टाइम पे 10-12 बच्चे पढ़ा रहा था, मैं एक टाइम पे एक ही बच्चा पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी एफिशिएंसी गिर गई। प्रोडक्शन तो बढ़ी बट एफिशिएंसी गिर गई। यस और नो? ओके सर, यस सर। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दो अलग चीजें होती हैं। आप 1 घंटे में लेट अस अज्यूम साइंस के 20 क्वेश्चंस कर पाते हो, 3 मार्कर्स। लेट अस अज्यूम 1 घंटे में 20 3 मार्कर्स कर दिए, बट मैथ्स के 1 घंटे में आप 5 ही कर पाते हो। तो 5 कर पाए तो आउटपुट तो निकला 5, बट एफिशिएंसी ज्यादा किस में थी, साइंस में या मैथ्स में? साइंस। Science में sir. तो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में फर्क समझ आया? यस सर। ओके, तो अजम्पशन में लास्ट क्या था? द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो रिसोर्सेज भी फिक्स्ड है, ग्रो नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट है। तो रिसोर्सेज जिस चीज के लिए फेवरेबल थे उसी चीज के लिए फेवरेबल है, उनको मोल्ड नहीं किया जा सकता, उनको ट्रेन नहीं किया जा सकता। अब ध्यान से देखना, मोस्ट मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। मान्यता हो बेटा, बस 3-4 मिनट। Yes, sir. ठीक है, 3-4 मिनट्स में क्लास ही खत्म हो जाएगी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब जितनी बातें मैंने बोली ना, अब वो सब अप्लाई करूंगा मैं। ध्यान से देखना, मजा आएगा। एक सेकंड, आप पहले तुम चलो, कुछ नहीं।
जब मुझे ले रहे तो पूरे लेना। ठीक है, ध्यान से देखना। एक्स पे वही ले लेते हैं ना जो एग्जैक्टली वही ले रहे हैं, तो क्या गन्स, हाँ बटर, ठीक है। तो आप रिलेट ढंग से कर पाओगे ना फिर नोट से। बटर एक्स एक्सिस पे ले लिया मैंने और वाई एक्सिस पे ले लिए गन्स, ठीक है। गन्स हैं, बंस नहीं है, गन्स। अब भैया बटर और बन तो समझ आते हैं, गन्स क्या, वॉर गुड्स या कंज्यूमर गुड्स। तो ध्यान से देखना, चलो ये मेजरमेंट एग्जैक्ट होनी चाहिए आपकी। आपके पास तो स्केल होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये एक पॉइंट ले लिया, ध्यान से देखना। ओके, अब अगर इनके ABCD भी इन्हीं के ले लेते हैं, ठीक है। पॉइंट ए पे हूं, अगर मैं पॉइंट ए पे हूं तो क्या हो रहा है मान्यता? So production of guns. सारे के सारे रिसोर्सेज मेरे गन्स पे ही यूटिलाइज्ड हैं। Yes, sir. यार प्लीज इसको एग्जैक्ट रखेंगे ना तो और ज्यादा एक्यूरेट आएगा रिजल्ट, तो इसको एग्जैक्ट कर लेना आप अपने आप। अब ध्यान से देखना, आई वांट टू प्रोड्यूस बटर, ठीक है। तो अगर बटर प्रोड्यूस करने का ज्यादा शौक चढ़ रहा है तो क्या होगा, ध्यान से देखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अब स्टार्ट होगा। मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बटर आई हैव टू सैक्रिफाइस गन्स। Yes, sir. तो मैंने कुछ गन्स सैक्रिफाइस करी 1 यूनिट ऑफ बटर के लिए, ओके। अब मैं आगे गया, एक और यूनिट ऑफ बटर बनाना चाहता हूं। अब ध्यान से देखना, मजा आएगा। ध्यान से देखना, अब जो क्वेश्चन मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो अब आ रहा है। जब मैं पॉइंट बी से पॉइंट सी पे गया तो एक और बटर बनाने के लिए मुझे गन्स सैक्रिफाइस करनी पड़ी। यस सर। तो जो सैक्रिफाइस थी वो कम हो गई या बढ़ गई? सैक्रिफाइस बढ़ गई सर। बढ़ गई sacrifice. बटर तो एक ही यूनिट और बनाया, बट गन्स पहले से ज्यादा सैक्रिफाइस करनी पड़ी या कम? ज्यादा। ज्यादा। डेल्टा वाई है चेंज इन वाई, गन्स सैक्रिफाइस्ड। डेल्टा एक्स है बटर इंक्रीज्ड। तो ये है यूनिट्स ऑफ गन सैक्रिफाइस्ड, यूनिट्स ऑफ बटर इंक्रीज्ड। एक यूनिट के लिए आपने गन सैक्रिफाइस करी, रेट ऑफ सैक्रिफाइस बढ़ा या कम हुआ? बढ़। ओके, अब मैंने एक और यूनिट बनानी है, बटर की एक और यूनिट बनानी है। एक और यूनिट बनाने के लिए फिर और गन सैक्रिफाइस करनी पड़ी। यस यस सर। सर। तो पहले से ज्यादा गन सैक्रिफाइस करनी पड़ी या पहले से कम? सर ज्यादा ज्यादा। गन। पहले से और ज्यादा। फिर एक और यूनिट ऑफ बटर बनाना चाहते थे, अगर वो एग्जैक्ट होता तो आपको और बेटर दिखता, बट इसमें भी दिख ही रहा है।
अगर वो डिस्टेंस सेम होगा तो पॉइंट क्या है, पॉइंट है कि जो रेट ऑफ सैक्रिफाइस है वो बढ़ता जा रहा है। यस और नो? यस सर। यस सर। ऐसा क्यों? बिकॉज द रिसोर्सेज वर नॉट इक्वली एफिशिएंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स। और आप क्या कर रहे थे, आप अपने रिसोर्सेज शिफ्ट करे जा रहे थे उस चीज पे जिस चीज के लिए आप लेस एफिशिएंट थे। तो जब हम ग्राफ बना रहे हैं तो हम वाई एक्सिस पे वो चीज दिखाते हैं जिसमें हम मोर एफिशिएंट थे, और एक्स एक्सिस पे हम वो चीज दिखाते हैं जिसमें हम लेस एफिशिएंट थे। क्योंकि ये जो कॉनकेव, ये शेप क्या है, कॉनकेव शेप है। क्या शेप है ये? कॉनकेव, इसको बोलते हैं कॉनकेव शेप। इसका रीजन क्या होता है? इंक्रीजिंग MRT, marginal rate of transformation, basically increasing sacrifice। आपका जो सैक्रिफाइस है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसीलिए इसकी शेप ऐसी होती है। कैसी होती है? कॉनकेव टू द ओरिजिन। यहीं से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी बातें मैं दोबारा करूंगा। लेकिन जब आप एक बार अपने आप पढ़ के बना के फिर डिस्कशन में आओगे तो हमारा टॉपिक वहीं क्लोज हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको अजम्पशंस ऑफ पीपीएफ बताया, मीनिंग ऑफ पीपीएफ बताया, ग्राफ बस एक बार ही बना के दिखाया। आप बनाना, मैं आपको इस ग्राफ से ये प्रूव करूंगा कि कैसे MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बिकॉज ऑफ विच जो शेप है पीपीसी की कॉनकेव टू द ओरिजिन होती है।